Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum and welcome back to lecture number 31. This lecture number 31 is our second last lecture, and in this lecture I will give you some of the practice questions which are related to our previous 30 lectures. Almost we have covered 7 chapters, and these chapters have different topics which started from accounting equation, accounting cycle, inventories, receivables, and finally we reach up to cash and a bank reconciliation statement. So today I am giving you some of the practice questions and with some information that how you have to solve these questions. So let me start from here, that what is our recommended book for your practice questions. I have taken some of the questions from one book, other book. You can also for your own self find out information from different accounting books, and the name of accounting books would be Accounting, the Basis for Business Decisions, or Accounting, Simple Accounting. So if you see on the slide, first I have used a book that is Meigs, William, Haka, Bettner. These are the 4 authors, and they have written their book Accounting, the Basis for Business Decisions, and it's 11th edition. You can use the latest decision, but the maximum difficulties which I have solved in these lectures can cover all types of your questions. इसमें एक चीज़ आपको और भी बताता चलूँ, the most important thing is कि the rule of accounting to solve their question is कि आपने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया फॉर एग्जाम्पल, और क्वेश्चन नंबर 2 पर गए हैं सॉल्व करने के लिए, और क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व नहीं हो रहा, थोड़ा सा डिफिकल्ट ज़रूर है, थोड़ा सा आपको एक पेन ज़रूर लेनी पड़ेगी कि वापस क्वेश्चन नंबर 1 पर आएं, उस क्वेश्चन को सॉल्व करें और फिर देखें कि अब क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व होता है कि नहीं होता, क्योंकि जितनी आप प्रैक्टिस ज़्यादा करते हैं इतनी ही आपकी एक फेमिलैरिटी क्वेश्चन को सॉल्व करने में, ईजीनेस क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपकी बढ़ती है. सो आई जस्ट सजेस्ट फॉर यू दैट यू शुड सॉल्व these questions, because maximum questions I have the complex questions that I have given to you, and I solved it on these slides. So I hope that, and I expect from you that you will make a big practice for these questions related to our 7 chapters. Another book that you can use, that is Warren Reef Fess, Accounting 31st edition. आप ये भी बुक यूज कर सकते हैं, इसमें भी इंफॉर्मेशन आपको अवेलेबल होगी. So you can use this book as well. You can get some of the questions from the second book, as I told you, Accounting 21st edition. So some of the information for your previous lecture has been taken from book number 2, and some of the questions that I have taken it and delivered to you in my previous lectures, that is related from the first book. So coming back to our first topic that we have studied, it was accounting equation, and we know that accounting equation is assets must be equal to liabilities plus owner's equity. आपके पास थोड़ा सा इसको मैं रिव्यू कर दूं आप लोगों के लिए कि अकाउंटिंग इक्वेशन में आपने क्या पढ़ा था. आपके पास मुख्तलिफ किस्म के क्वेश्चंस आ सकते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन में, बट द मेन प्रिंसिपल इज कि एसेट्स मस्ट बी इक्वल टू योर लाइबिलिटीज प्लस ऑनर्स इक्विटी. वो क्या था कि आपके पास सबसे पहले आप देखते हैं कि ऑनर ने इन्वेस्ट कितना किया और उसके थ्रू कितने आपके एसेट्स बने, बिजनेस के बेसिकली एसेट्स बने, और फिर
आप अगर अपने पास आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो इतनी सफिशिएंट नहीं है, आप लोन लेते हैं आउटसाइडर से, सो दैट बिकम्स अ सेकंड पार्ट ऑफ योर सोर्स ऑफ फंड्स, तो वो आपकी लाइबिलिटीज होती हैं. सो शुड आई राइट हियर दैट योर एसेट्स मस्ट बी इक्वल टू योर लाइबिलिटीज प्लस ऑनर्स इक्विटी. ये आपकी बेसिक एक प्रिंसिपल है अकाउंटिंग इक्वेशन का. सो आई एम गिविंग यू क्वेश्चन हियर. नंबर 1, I am giving you this question. You have already solved it, but I have changed some of its transactions. You can see for your practice. Your first transaction was Javed Iqbal deposited rupees 35,000 in a bank account in the name of Opportunities Incorporation. आपकी ट्रांजैक्शन वही है. अब मैं यहाँ पे एक सीक्वेंस लेकर आ रहा हूँ कि किस तरह की आपकी कॉम्प्लेक्सिटीज बन सकती हैं. जो क्वेश्चंस की आपके पास यहाँ पर 3 क्वेश्चंस हो गए अकाउंटिंग इक्वेशन से रिलेटेड, कि ऑनर ने 35,000 रुपीज बैंक में जमा करवाए इन द नेम ऑफ अपॉर्चुनिटीज इनकॉर्पोरेशन, अपने बिजनेस के नाम से, और बैंक बिजनेस का नाम था अपॉर्चुनिटीज इनकॉर्पोरेशन. तो आपके पास एक एसेट हो गया 35,000 का कैश, और दूसरा आपके पास ऑनर्स इक्विटी होगी. देन अपॉर्चुनिटीज इनकॉर्पोरेशन एक्सचेंज फॉर रुपीज 25,000 फॉर लैंड. अब उसने कहा कि 25,000 रुपये कैश की लैंड परचेज की गई है. तो अब आपके पास एक एसेट इंक्रीज हुआ, दूसरा एसेट कैश पे कर दिया, वो डिक्रीज हो गया. थर्ड वन, ड्यूरिंग द मंथ अपॉर्चुनिटीज इनकॉर्पोरेशन परचेज्ड सप्लाईज फॉर रुपीज 1,350 एंड एग्रीड टू पे द सप्लायर इन द नियर फ्यूचर. अब यहाँ पर उसने क्लियर कट आपको बता दिया हुआ कि एग्रीड टू पे इन द नियर फ्यूचर, इट मीन्स दैट कि नियर फ्यूचर में ऑन अकाउंट पेमेंट की जा रही है. देन फोर्थ ट्रांजैक्शन में आपको बताया जा रहा है अपॉर्चुनिटीज इनकॉर्पोरेशन प्रोवाइडेड सर्विसेज टू कस्टमर्स, अर्निंग फीस ऑफ रुपीज 7,500 एंड रिसीव द अमाउंट इन कैश. अब सर्विसेज परफॉर्म की गई हैं तो आपके पास कैश आ रही है एक, और दूसरी साइड पे 7,500 आपकी जो आप अर्न कर रहे हैं, दैट बिकम्स अ पार्ट ऑफ योर ऑनर्स इक्विटी, तो ऑनर्स इक्विटी में ऐड हो जाएगा. Then Opportunities Incorporation paid the following expenses: wages, rent, utilities, miscellaneous expenses. ये वो expenses हैं जो डायरेक्ट आपकी ऑनर्स इक्विटी को रिड्यूस कर रहे होते हैं. इसकी डिटेल हमने ऑलरेडी देखी थी अपने फर्स्ट लेक्चर में. सेकंड लेक्चर में उसको अगेन हमने रिपीट किया था, तो आप उसमें देख सकते हैं कि इसको कैसे सॉल्व किया गया है. जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके जो मैं दे रहा हूँ वो करने ईजी हो जाएंगे आपके लिए. देन अपॉर्चुनिटीज पेड रुपीज 1,950 टू द क्रेडिटर्स ड्यूरिंग द मंथ. अब यहाँ पर जो आपने ऑन अकाउंट चीज़ें परचेज की थी, अब वहाँ पर आप पेमेंट कर रहे हैं. एक कैश कम हो रहा है, दूसरी साइड पे आपकी लाइबिलिटीज कम हो रही हैं. Then at the end of the month, the cost of supplies on hand is rupees 550. So rupees 800 of supplies were used. अब इसमें 800 का आपकी एक्सपेंस हो गया, तो टोटल जो सप्लाईज आपके पास अवेलेबल थी वो सप्लाईज आपकी अब 800 से कम हो गई हैं, और दूसरी साइड पे आपका वो एक्सपेंस बन गया, और एक्सपेंस आपका डायरेक्ट जो है वो इफेक्ट करता है आपकी ऑनर्स इक्विटी को, उसको रिड्यूस करता है. लास्ट वन, एट द एंड ऑफ द मंथ जावेद विड्रू रुपीज 3,000 इन कैश फ्रॉम द बिजनेस फॉर पर्सनल यूज. अब एक साइड से कैश निकल रही है और दूसरा आपका कैपिटल रिड्यूस हो रहा है. सो दीज आर द बेसिक इफेक्ट्स ऑन योर एसेट्स एंड लाइबिलिटीज एंड ऑनर्स इक्विटी. जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे तो फिर आपके लिए इजी होगा कि आप जो है वो इससे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उनको सॉल्व करें. सो आई एम गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अब यहां पे थोड़ा सा एक डिफरेंट क्वेश्चन ये आया, वो बिल्कुल आपका जो पिछला क्वेश्चन था दैट वाज अ फ्रेश स्टार्ट ऑफ बिजनेस. अब ये कंडीशन यहां पर है कि इस बिजनेस में आपके पास जो ट्रांजैक्शंस हैं वो ऑलरेडी हो चुकी हैं, बिजनेस ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, उसके पास एसेट्स भी हैं, लाइबिलिटीज भी हैं, ऑनर्स इक्विटी भी है, वो ऑलरेडी आपके पास एग्जिस्ट करते हैं. अब आपने पिछले साल का डाटा, ये पिछले महीने का डाटा आपने कैरी फॉरवर्ड करना है नेक्स्ट में. सो लुक एट ऑन दिस PowerPoint slides, you can see that we had already a balance of cash from the assets, land from the assets, building price, building value,
45,000, ऑफिस इक्विपमेंट 22,500। ये ऑलरेडी आपके पास एसेट्स कैरी फॉरवर्ड हुए हैं पिछले महीने से या पिछले साल से, बिजनेस ऑलरेडी चल रहा था। देन लाइबिलिटीज में आपके पास नोट्स पेबल, अकाउंट्स पेबल और ऑनर्स इक्विटी, ये जो कैपिटल था। अब इन तीनों को ऐड करके देख लें, दैट मस्ट बी इक्वल विद योर एसेट्स। अब आपके पास ये डाटा ऑलरेडी एग्जिस्ट करता था। अब नेक्स्ट जो 5 ट्रांजैक्शंस होंगी, वो जो 5 ट्रांजैक्शंस है वो इन ही एंट्रीज पर इफेक्ट करेंगी। फॉर एग्जांपल, द ओनर इकबाल डिपॉजिटेड ₹20,000 इन द पर्सनल फंड्स इनटू बैंक अकाउंट ऑफ द बिजनेस। अब ये एडिशनल, अब यहां पर अगर मैं कह दूं कि एडिशनल इन्वेस्टमेंट हुई, एडिशनल इन्वेस्टमेंट है ये, तो आपका कैपिटल इंक्रीज हो रहा है और कैश इंक्रीज हो रहा है। देन परचेज लैंड एंड अ स्मॉल ऑफिस बिल्डिंग फॉर अ टोटल प्राइस ऑफ 80,000। अब 80,000 की वो परचेज की गई हैं, विच ₹30,000 वाज अ वैल्यू ऑफ लैंड एंड ₹50,000 वाज अ वैल्यू ऑफ बिल्डिंग। अब क्योंकि आपके पास अलग अलग अकाउंट लैंड का और बिल्डिंग का अवेलेबल है, तो फिर आप 30,000 ऐड करेंगे अपनी लैंड में और 50,000 आप ऐड करेंगे बिल्डिंग में। ठीक है। नेक्स्ट वो कहता है कि पेड ₹20,000 इन कैश। अब इस 80,000 में से 20,000 कैश पे की गई है एंड साइंड अ नोट पेबल फॉर द रिमेनिंग ₹60,000, और बाकी जो 80,000 में से 60,000 है उसका आपने नोट पेबल उनको लिख के दे दिए, तो आपकी ये नोट पेबल में ऐड हो जाएगा। देन थर्ड ट्रांजैक्शन आपको कहती है कि बॉट अ कॉपिंग मशीन ऑन क्रेडिट फॉर ₹9,500, 30 days ओपन अकाउंट। अब ओपन अकाउंट मीन्स इट इज एन अकाउंट्स पेबल रादर देन नोट्स पेबल, क्योंकि ओपन अकाउंट है तो आप कभी भी पे करके दे सकते हैं उसको। 30 days की बात हुई है तो विद इन 30 days आप कभी भी पे कर सकते हैं उसको। आपने अब यहां पर इसको ऑफिस इक्विपमेंट में ऐड करेंगे, क्योंकि आपके पास कॉपी मशीन को सेपरेट नहीं है ट्रांजैक्शन, तो आपने इससे हट के नहीं करना। इन्हीं जो ट्रांजैक्शन आपको बता दी गई हैं, एसेट्स में 4 आपके पास आइटम्स है और लाइबिलिटीज में 2 हैं, ऑनर्स इक्विटी में 1 है, इन्हीं में आपने एडजस्ट करना होता है इनको। तो आपके पास कॉपिंग मशीन इज अ पार्ट ऑफ ऑफिस इक्विपमेंट, तो आप 9,500 ऐड करेंगे एक साइड पे और दूसरी साइड पे आपकी अकाउंट्स पेबल में ये ऐड हो जाएगा। फोर्थ ट्रांजैक्शन आपको कहती है ऑब्टेन्ड अ लोन फ्रॉम यूबीएल इन द अमाउंट ऑफ ₹18,000, साइंड अ नोट पेबल। आपने लोन लिया है तो आपके पास कैश आ गई है और दूसरी साइड पे नोट्स पेबल में इंक्रीज आया। थर्ड में कहता है कि फिफ्थ जो पॉइंट आपका पेड ₹9,500 अकाउंट्स पेबल ओरिजिनेटिंग इन ट्रांजैक्शन 3। अब ट्रांजैक्शन 3 में जो आपने पेमेंट करनी थी, जो आपने कॉपी मशीन परचेज की थी, वो अब आपने उसकी पेमेंट कर दी है, तो अब आपके पास कैश भी चली गई है और उधर से आपका अकाउंट्स पेबल जो 9,500 से इंक्रीज किया था वो भी हो गया। अब सेकंड टाइप का आपका ये बिजनेस है कि जिसमें आपका बिजनेस फ्रेश स्टार्ट नहीं है, बल्कि पीछे की जो वैल्यूज थी वो सारी कैरी फॉरवर्ड की गई हैं, और कैरी फॉरवर्ड के बाद फिर आपने इसमें जो नेक्स्ट ट्रांजैक्शंस थी उनको 5 को आपने एडजस्ट किया है। अब रिक्वायरमेंट्स में आपको बताया गया कि रिकॉर्ड द इफेक्ट ऑफ ईच ट्रांजैक्शंस मेंशन्ड अबव, लिस्ट द December 31st बैलेंसेस ऑफ एसेट्स, लाइबिलिटीज एंड ऑनर्स इक्विटी। अब सेकंड में आपसे वो पूछ ही रहा है कि इनके एंड पे आप टोटल भी बताएं कि टोटल कितने हैं, कि आपके कैश का अब नेट बैलेंस कितना अवेलेबल है, लैंड का कितना है, बिल्डिंग का कितना है, ऑफिस इक्विपमेंट का कितना है, देन नोट्स पेबल का टोटल कितना है, अकाउंट्स पेबल का अब नेट बैलेंस कितना है, और फाइनली ऑनर्स इक्विटी का आपका कितना बैलेंस है। ये आपसे ट्रांजैक्शन पूछी गई थी। So I hope now you can easily solve this question because this is a new type of question. Now the third one could be this type of your question. You can see on your PowerPoint slide. This question is already solved. इस क्वेश्चन को सॉल्व किया हुआ है। आपने क्या करना है, अब यहां पर आपके पास 5 ट्रांजैक्शंस दी गई हैं, A, B, C, D, E और एंड पे आपको बैलेंसेस बताए गए। ये पिछले क्वेश्चन का बिल्कुल उलट है। अब आपसे रिक्वायरमेंट क्या है, 5 ट्रांजैक्शंस ऑफ ABC कंपनी आर समराइज्ड बिलो
in the equation form along with their effects. You are to write a separate sentence explaining the nature of transaction. आपके पास बैलेंसेस अवेलेबल हैं, बैलेंस आपने बता दिए। अब वो कहता है आपसे कि आपका जो सॉल्व क्वेश्चन है हर ट्रांजैक्शन का सेंटेंस बताएं कि ये क्या था कि जिसका इफेक्ट क्या हुआ है। अब आपको एक सिंपल मैं इसका बता देता हूं। फॉर एग्जांपल ए में आपको बताया गया है कि ऑफिस इक्विपमेंट में ऐड हो रहा है 6800 और अकाउंट्स पेबल में ऐड हो रहा है 6800। सो इट मींस दैट यू हैव परचेज्ड एन इक्विपमेंट ऑन अकाउंट। यही इसकी ट्रांजैक्शन है। ट्रांजैक्शन क्या होगी कि एबीसी कंपनी परचेज्ड इक्विपमेंट फॉर ₹6800 एंड द अमाउंट वुड बी पेड इन द नियर फ्यूचर। तो ये आपको एक पहला बता रहा हूं मैं, पहली जो ए था उसका आपको मैंने बता दिया। बाकियों के आपने सेंटेंसेस खुद लिखने हैं कि इनका इफेक्ट क्या था और क्या हुआ। अब बी आप चेक कर लें, कैश में से 4200 जा रहा है, माइनस हो रहा है, और अकाउंट्स पेबल में से 4200 माइनस हो रहा है। तो आप खुद अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि इसकी सेंटेंस क्या होगा, क्या ट्रांजैक्शन थी कि जिसका इफेक्ट ये हुआ है। देन सी में आप देखें कि कैश और अकाउंट रिसीवेबल। तो क्या हुआ कि आपके अकाउंट रिसीवेबल में माइनस हो रहा है और कैश में इंक्रीज आ रहा है। तो इसकी क्या ट्रांजैक्शन होगी ये आप खुद देखेंगे। देन डी में आप देखें कि कैश में से -300 हुआ, ऑफिस इक्विपमेंट में प्लस हुआ 1900 और अकाउंट्स पेबल में हुआ 1600। अब ये थोड़ा सा एक कंपोजिट एंट्री आ गई कि जिसमें 3 ट्रांजैक्शंस इन्वॉल्व हैं। छोटा सा क्लू आपको दे देता हूं इसका मैं, वो ये है कि आपने ऑफिस इक्विपमेंट परचेज किया और उसमें से आपने 300 कैश पे कर दी और बाकी के जो बैलेंस है वो आपने कहा कि नियर फ्यूचर में हम पे कर देंगे। सो दैट वाज अबाउट योर दिस ट्रांजैक्शन डी। फिर आपने ई ट्रांजैक्शन पे आए, 5th ट्रांजैक्शन पे कैश में से 5000 माइनस हो रहे हैं और कैपिटल अकाउंट में से भी 5000 माइनस हो रहे हैं। अब आपको देख लें कि ये क्या है, क्या ट्रांजैक्शन हो सकती है कि आप कैश में से भी माइनस कर दें और कैपिटल अकाउंट में से भी माइनस कर दें। ये कहीं आपकी वो ड्राइंग्स वगैरह पर्सनल यूज़ तो नहीं है। तो आपने इन 5 ट्रांजैक्शंस की जो सेंटेंसेस है वो लिखने हैं कि जिनका इफेक्ट ये हुआ है। एंड पे आपने फिर इनके बैलेंसेस भी कैलकुलेट करके दे दिए कि कैश का कितना है, अकाउंट रिसीवेबल का, लैंड का, बिल्डिंग का, ऑफिस इक्विपमेंट का। ये आपके 5 कंपोनेंट एसेट्स के हैं, अकाउंट्स पेबल, लाइबिलिटीज में और फिर आपकी कैपिटल अकाउंट में भी अमाउंट लिखी हुई है। सो दैट इज अनदर टाइप ऑफ, थर्ड टाइप ऑफ योर क्वेश्चन फ्रॉम अकाउंटिंग इक्वेशन। आई होप कि अब इन 3 क्वेश्चंस को जब आप सॉल्व कर लेंगे तो मेरे ख्याल में अकाउंटिंग इक्वेशन के क्वेश्चंस को सॉल्व करना और उनका इफेक्ट चेक करना कि किसका इफेक्ट किस पर होता है आप इजीली कर सकते हैं। सो अकाउंटिंग साइकिल, इसके बाद हमने पढ़ा था अकाउंटिंग साइकिल के बारे में। अकाउंटिंग साइकिल का आपको याद होगा कि दैट स्टार्टेड फ्रॉम अ ट्रांजैक्शन टू जनरल एंट्री। Journal entry was posted into the ledger account. Ledger was brought into your trial balances. फिर उसके बाद आपने एडजस्टमेंट्स की, एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बनाया, फिर आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई, उसके बाद आपने क्लोजिंग एंट्रीज की और फाइनली आपने पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस बना दिया। ये तो आपको मैंने सारे इसके 7 स्टेप्स बताए हैं, लेकिन आपको मैं अब स्टेप बाय स्टेप इनके क्वेश्चंस दे रहा हूं कि आपने स्टेप बाय स्टेप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करना है। देखिए पहला क्वेश्चन आपके पास जो है, मिस्टर नूर अहमद स्टार्टेड हिज बिजनेस विद द नेम ऑफ ऑटो रेंटल इनकॉर्पोरेशन, फॉलोइंग आर द ट्रांजैक्शंस। अब ये आपके पास एक क्वेश्चन दिया गया है, बाद में इसकी रिक्वायरमेंट्स भी बताई जाएंगी क्या है। आपने पहला काम जो करना है वो इनकी जनरल एंट्रीज का करना है कि आपने पहले जनरल एंट्रीज पास करनी है इनकी और उसके बाद फिर इनको लेजर्स में लेके जाना है और फिर आपने ट्रायल बैलेंस इनका
करना है। सो फर्स्ट वन इज योर मार्च 1st, Noor invested rupees 1,40,000 cash in the business by making a deposit in a bank account in the name of Auto Rental Incorporation. अब पहला उसने काम ही इन्वेस्टमेंट का किया, इनिशियल इन्वेस्टमेंट का। इसकी आपको पता है जनरल एंट्री क्या होनी चाहिए। आप जाएं अपने लेक्चर्स में चेक करें कि इसकी जनरल एंट्री कैसे की गई थी। आपने बिजनेस स्टार्ट किया, कैश डेबिट हुई और कैपिटल आपका क्रेडिट कर दिया आपने। अब कैश का अलग से लेजर बनेगा और कैपिटल अकाउंट का आपके अलग से लेजर बनेगा। ये तो फर्स्ट ट्रांजैक्शन थी। सेकंड ट्रांजैक्शन आपकी मार्च 3rd में क्या हुई? द न्यू कंपनी परचेज्ड लैंड एंड बिल्डिंग एट ए कॉस्ट ऑफ ₹1,20,000 ऑफ विच ₹72,000 was regarded as applicable to land and 48,000 to the building. अब यहां पर 1,20,000 रुपए की आपने लैंड और बिल्डिंग परचेज की है। उसमें से आपको बताया गया कि 72,000 आपकी जो है लैंड से रिलेटेड है और 48,000 आपकी बिल्डिंग से रिलेटेड है। अब यहाँ पे डिफरेंशिएट करके देख लें आप, जिस तरह हमने पहले क्वेश्चन में किया है। एक जनरल एंट्री तो आपकी ये होगी कि लैंड 72,000 डेबिट, बिल्डिंग आपकी 48,000 डेबिट, और क्रेडिट में आप क्या करेंगे? ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व्ड अ कैश पेमेंट ऑफ ₹41,500। अब एक तो क्रेडिट ये हो गया, एंड इशुएंस ऑफ नोट पेबल फॉर 75,800। बाकी क्या होगा आपके पास? वो नोट्स पेबल हो जाएगा। तो अब इस जनरल एंट्री में आपकी 4 एंट्रीज इन्वॉल्व हैं। लैंड डेबिट 72,000 से, बिल्डिंग 48,000 से डेबिट। अब ये 2 डेबिट हो गए। क्रेडिट में क्या हो रहा है आपके पास? कैश क्रेडिट 41,500 और नोट्स पेबल क्रेडिट आपका 78,500 से। आपने ये ट्रांजैक्शन भी कर दिया। और अब देखें कि आपके पास लैंड का अकाउंट नहीं था, इसका लेजर बनेगा। बिल्डिंग का अकाउंट आपके पास नहीं था, लेजर बनेगा। क्रेडिट में आपके पास कैश हो रहा है, क्रेडिट कैश का ऑलरेडी आपके पास अकाउंट है जो आपने शुरू में लेजर बनाया था पहली जनरल एंट्री का, और नोट्स पेबल का आपके पास लेजर नहीं था तो वो आप लेजर बनाएंगे। 5th ट्रांजैक्शन में आप क्या करेंगे कि परचेज्ड 20 न्यू ऑटो बाइक्स एट ₹8,600 ईच फ्रॉम द फ्लीट सेल्स कंपनी। अब ये जिससे आप परचेज कर रहे हैं ये फ्लीट सेल्स कंपनी है। पेड ₹40,000 कैश एंड एग्रीड टू पे ₹72,000 by March 31st and the remaining balance by April 15th. The liability is used as an account payable. अब देखें कि इसमें कौन कौन सी चीजें इन्वॉल्व हैं। अब उसने आपको टोटल अमाउंट नहीं बताई कि टोटल अमाउंट की कितनी है आपकी बाइक्स हैं। 20 बाइक्स कह रहा है, तो आप क्या करेंगे? 20 मल्टीप्लाइड बाई 86 पर बाइक। अब आपके पास जो भी अमाउंट आएगी ये इसकी आपके पास ऑटो बाइक्स आ गई हैं। इसको आप ऑटो बाइक्स का नाम दे दें या इसको आप व्हीकल का नाम दे दें। डेबिट करेंगे, आपके पास इसका लेजर भी नहीं है। फिर आपके पास क्रेडिट में कैश कितनी है? 40,000 की, आपने ये कर दी। और उसके बाद जो रिमेनिंग अमाउंट है, अब वो कहता है कि 32,000 आप मार्च में पे करेंगे, तो करेंगे ना। इससे पहले आपके लिए ये लायबिलिटी है। जब ये टाइम आएगा 31 मार्च का आएगा तो आप उस वक्त पे कर रहे होंगे। आपने बाकी सारी रिमेनिंग अमाउंट है उसको एज एन अकाउंट्स पेबल ट्रीट करना है। यहां पर डेट्स का कोई कंसर्न नहीं है। बेशक आपने अगले दिन पे करना हो और फिर आपने 3rd डे पे करना हो, 4th डे पे करना, तो वो सारी सारी लाइबिलिटी कंसिडर की जाएगी आपकी। तो आपके पास व्हीकल डेबिट कर रहे हैं आप, व्हीकल आपकी डेबिट होगी, गाड़ी है, जाहिर है मोटरसाइकिल है आपकी, वो डेबिट करेंगे। और क्रेडिट में आप कैश करेंगे और फिर आपका एक और होगा अकाउंट्स पेबल, उसको भी आप क्रेडिट कर देंगे।
तो अब बाद में जब डेट आएगी 31 मार्च आएगी तो तब आप उसकी पेमेंट कर लेंगे, लेकिन अभी तक आपने क्या करना है, अभी तक इस सारी की सारी अमाउंट को अदर देन कैश आपने अकाउंट्स पेबल ट्रीट करना है, क्योंकि उसने कहा है कि सिंपली दिस लायबिलिटी इज व्यूड एज एन अकाउंट्स पेबल। अब आप देखें व्हीकल का आपके पास लेजर नहीं है, आप इसके लेजर बनाएंगे, कैश का ऑलरेडी है उसमें ट्रीट करेंगे। और थर्ड, अकाउंट्स पेबल का आपका लेजर नहीं था, नोट्स पेबल का था, अकाउंट्स पेबल का नहीं था, तो अब आप अकाउंट्स पेबल का भी लेजर बनाएंगे। देन 7 मार्च को जो आपकी फोर्थ ट्रांजैक्शन है उसमें क्या हुआ, सोल्ड एन ऑटो बाइक एट ए कॉस्ट टू मिस्टर जफर हु पेड ₹2400 इन कैश एंड एग्री टू पे द बैलेंस विद इन 30 डेज। अब आपने एक ऑटो बाइक को सेल कर दिया, अब आपकी यहां पर सेल्स हो रही हैं, तो फिर क्या करेंगे, आपके पास कैश आ रही है 24,000 की, कैश डेबिट कर रहे हैं आप लोग, और डेबिट क्या हो रहा है आपके पास, अकाउंट्स रिसीवेबल, और बाकी आपके पास जो रिमेनिंग अमाउंट होगी और टोटल आपकी सेल्स हो जाएगी 8,600। अब एक चीज नोट कीजिएगा इसमें, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि आपकी ये नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस नहीं है। जब आपका ये नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस नहीं है तो फिर इसको आप सेल्स ट्रीट नहीं करेंगे। या तो आपको कहता कि आपने इसको 9,000 का सेल कर दिया है तो फिर तो आपने 400 का प्रॉफिट लिया होता। आप तो सिर्फ एक ऑटो रेंटल का काम कर रहे हैं कि आप रेंट में मोटरसाइकिल देते हैं और उससे आप उसके सर्विस चार्जेस ले लेते हैं। आपके पास पता है ना, गाड़ियाँ रेंट पे दी जाती हैं पर डे के हिसाब से, 24 आवर्स के हिसाब से, पर मंथ के हिसाब से गाड़ियाँ कंपनी ले लेती हैं रेंट पे गाड़ियाँ। तो आपने यहाँ पर सिर्फ वैसे ही एक बाइक को सेल कर दिया, फ्रेंड हो सकता है आपका, तो फिर आपके क्रेडिट में व्हीकल होगी। आप इसका बिजनेस नहीं करते सेल परचेज का, मोटर बाइक्स का, तो आपने अपने फ्रेंड को दे दिया है तो सेल कर दिया हो, तो दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ योर नॉर्मल कोर्स ऑफ ऑपरेशंस। नॉर्मल कोर्स आपका ये है कि आप सिर्फ जो है वो रेंट पे मोटरसाइकिल देते हैं उसका। देन 8 मार्च को आपके पास वन ऑफ द ऑटो बाइक वाज फाउंड टू बी डिफेक्टिव एंड वाज रिटर्न टू फ्लीट सेल्स कंपनी। आपके पास एक मोटर बाइक डिफेक्टिव निकला और आपने उसको वापस कर दिया। द अमाउंट पेबल टू दिस क्रेडिटर वाज देयर बाय रिड्यूस्ड बाय 8,600। अब क्या होगा, आपके पास ये जो अकाउंट्स पेबल आपका बना था ये डेबिट हो जाएगा और क्रेडिट में आपका व्हीकल एक कम हो गया 8,600 से और अकाउंट्स पेबल आपका कम हो गया है 8,600 से। देन मार्च 20 को परचेज्ड ऑफिस इक्विपमेंट एट ए कॉस्ट ऑफ ₹4,000 कैश। ऑफिस इक्विपमेंट है, सिंपल ट्रांजैक्शन, कैश के थ्रू की है, कैश ऑलरेडी लेजर आपके पास अवेलेबल है। ऑफिस इक्विपमेंट आपके पास नहीं था तो उसका आप लेजर बना लेंगे। देन 31 मार्च issued a check for ₹32,000 in partial payment of liability to fleet sales company। अब यहां पर देखें, जो आपने एक प्रॉमिस किया था कि दैट आई वुड पे 32,000, ये जो आपके पास यहां पर ये जो मार्च 5 की ट्रांजैक्शन थी, इसमें आपके पास एक प्रॉमिस था, अब आप वो प्रॉमिस फुलफिल कर रहे हैं। तो फिर आपने क्या किया, कैश पे कर दी और आपका अकाउंट्स पेबल उतने से कम हो गया, तो अकाउंट्स पेबल डेबिट हो रहा है और कैश क्रेडिट हो रही है। अब ये दोनों ही आपके पास लेजर्स ऑलरेडी मौजूद हैं। तो आपने 7 ट्रांजैक्शंस की हैं, उन 7 ट्रांजैक्शंस की आपने फिर उनको उनके रेलेवेंट लेजर्स में पोस्ट किया है। रेलेवेंट लेजर्स से आपने फिर उनको जो उनके ट्रायल बैलेंस में आपने पुट करना है। These are the basic requirements of this question that generalize the March transactions। आपने जनरल एंट्रीज बनानी है उनकी। Then post them into their ledger accounts, आपने उनको उनके लेजर्स में लेके जाना है। And then finally आपने उनका ट्रायल बैलेंस बनाना है। This is your rehearsal for the other complicated questions।
आपकी इस रिहर्सल करवा रहा हूँ, प्रैक्टिस करवा रहा हूँ कि आप अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं तो फिर आगे जो कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आएगा उसको सॉल्व करना आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। इसलिए इट इज़ मच बेटर फॉर यू कि आप प्रॉपर इसकी प्रैक्टिस करें इस क्वेश्चन की, देन यू शुड मूव टू द क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, दैट इज अ कंप्लीट अकाउंटिंग साइकिल दैट स्टार्ट्स फ्रॉम वन एरिया अप टू योर फाइनल पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस। अब इसमें आपको देखें कि टोटल आपके पास 6 या 7 लेजर्स बनेंगे। आपके पास कैपिटल का अकाउंट है वो बनेगा, आपके पास कैश का अकाउंट है, लैंड है, बिल्डिंग है, अकाउंट्स पेबल, नोट्स पेबल, ड्राइंग्स, और आपके पास व्हीकल का, ऑफिस इक्विपमेंट का, ये तकरीबन 8-9 के करीब आपके लेजर अकाउंट्स बनेंगे, इससे ज़्यादा शायद ना हो। तो आप जब इसको सॉल्व कर लेंगे तो आई होप दैट यू वुड बी इन ए पोजीशन टू मेक योर ओन डिसीजन कि इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी और इसको फिर आपने उसको लेजर में कैसे लेके जाना है, और फाइनली लेजर के बैलेंसेस आपने ट्रायल बैलेंस में कैसे शिफ्ट करने हैं, कैसे ट्रांसफर करने हैं आपने। सो गोइंग बैक अगेन टू कंप्लीट accounting cycle with adjusting entries. If you could remember in my previous lectures, I told you that sometime you are being explicitly told that कि this is your adjusting entry और आपने इसको सॉल्व करना है, बट sometime it does happen कि आपको बताया ना जाए और आपको उसकी जर्नल एंट्री पास करनी पड़े। आपने फिर वो खुद आइटम देखना है और उसके बाद बताना है कि आपकी क्या वो जर्नल एंट्री थी, क्या वो आइटम है और आपने उसकी कैसे उसकी एडजस्टमेंट करनी होगी। अब आपके पास फॉर एग्जांपल ये स्टार्ट होता है क्वेश्चन, आपके पास ये डेटा ऑलरेडी अवेलेबल है, इट मींस वी हैव ऑलरेडी सॉल्व्ड आवर बेसिक जर्नल एंट्रीज, we made ledger accounts and now I am giving you a trial balance. आपके पास एक ट्रायल बैलेंस है, दैट इज योर अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस। आपने इसकी एडजस्टिंग एंट्रीज करनी है। अब उस सिंपल एरिया से अब आप थोड़ा सा नेक्स्ट स्टेप की तरफ आ गए, जो हमने पिछला क्वेश्चन देखा है। पिछले क्वेश्चन में तो आपके पास सिंपली जर्नल एंट्रीज को आपने पोस्ट किया लेजर्स में और लेजर से आपने ट्रायल बैलेंस बना दिया, एंड दैट ट्रायल बैलेंस वाज योर अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस। अब आपको एक नया क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, इस नए क्वेश्चन के मुताबिक आपके पास अब यहां पर अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस है। लुक एट ऑन दिस स्लाइड, यू कैन सी दैट यू हैव अ कैश, अकाउंट्स रिसीवेबल बैलेंस, सप्लाईज बैलेंस, इक्विपमेंट बैलेंस, then accumulated depreciation. We know already that what is an accumulated depreciation, कि depreciation आप चार्ज करते जा रहे थे और उसका एक काउंटर अकाउंट आपने बनाया हुआ था accumulated depreciation of equipment का, that is 7,500. accounts payable 1,200, salary payable 1,100, unearned revenue 1,500, capital 7,200, withdrawals 1,000, revenues 23,700, सैलरीज एक्सपेंस 12,000। सो आपने डेबिट और क्रेडिट का टोटल किया, दैट वाज इक्वल टू 42,200। ये दोनों साइड्स आपकी इक्वल थी। अब अगर आप देखें तो आपके पास कुछ एडजस्टिंग एंट्रीज होगी। अब यहाँ पे मैंने खुद आपको फॉर योर ओन इजीनेस मैंने आपको यहाँ पे मेंशन कर दिया, सप्लाईज एक्सपेंस आपके पास आएंगी और डेप्रिसिएशन आएगी। So these are the basic adjusting entries that you have to solve by yourself. अब आप अगर देखें तो आपके पास ये एडजस्टिंग एंट्रीज हैं 3। The company has earned a revenue of ₹1,700 which will be collected next month. अब आपने पहले इसकी एडजस्टिंग एंट्री करनी है, फिर आपने इसको पोस्ट करना है लेजर्स में और लेजर में फिर आप ऐड करेंगे इसके ट्रायल बैलेंस में जाके। आपकी एक ही एडजस्टिंग एंट्री है, ये आपने खुद सॉल्व करना है इसको। आपके पास सिंपल मैं ये बता रहा हूं कि एक आपका रेवेन्यू है और दूसरा आपको कैश रिसीव नहीं हो रही। तो जब कैश रिसीव नहीं हो रही तो आपके पास ये आपका अकाउंट रिसीवेबल का अकाउंट बन रहा है।
जो अकाउंट रिसीवेबल और रेवेन्यू, सर्विस रेवेन्यू या फीस अर्न, ये आप जो भी इसके लिए टाइटल ऑफ अकाउंट पीछे यूज किया गया आप उसको चेक कर सकते हैं। तो अकाउंट रिसीवेबल का ऑलरेडी आपके पास अकाउंट मौजूद है, लेजर अकाउंट, और फीस अर्नड का भी ऑलरेडी आपके पास अकाउंट मौजूद है। सो यू डोंट नीड टू मेक अ सेपरेट लेजर अकाउंट्स। देन इन्वेंट्री ऑफ सप्लाईज एट मंथ एंड टोटल ₹150। अब इसका क्या मतलब हुआ कि अब आपके पास जो एट द एंड बैलेंस रह गया हुआ सप्लाईज का वो 150 का रह गया, और अगर आप जाकर वापस चेक करें तो आपके पास सप्लाईज पड़ी कितनी थी, आपके पास सप्लाईज 250 की थी, बाकी कितनी रह गई हैं 150 की। तो इट मींस यू हैव यूज्ड 100 सप्लाईज, 100 सप्लाईज आपने यूज कर ली हैं, और बाकी बैलेंस आपके पास 150 का रह गया हुआ है। सो आपके पास जो आप उसकी जनरल एंट्री करेंगे, यू ऑलरेडी नो कि एक्सपेंस क्या होता है, और जो एसेट आपका डिक्रीज हो रहा हो, क्योंकि आपकी सप्लाईज एसेट का पार्ट है तो डिक्रीज हो रहा है, तो उसकी क्या ट्रीटमेंट होगी। देन डेप्रिसिएशन फॉर द पीरियड वाज कैलकुलेटेड एज ₹200। हमने देखा है इसको ऑलरेडी भी कि आपकी अब डेप्रिसिएशन 200 की है, तो फिर क्या होगी, डेप्रिसिएशन आप क्या करते हैं, एक्सपेंस है, इंक्रीज होता है तो क्या करते हैं, तो फिर इसका काउंटर अकाउंट क्या बनता है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, वो आपके पास ऑलरेडी अकाउंट मौजूद है। सो आपके पास ये अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में देखें तो आपके पास 2 अकाउंट्स मौजूद थे और उन पर आपने उनकी प्रॉपर ट्रीटमेंट की है। अब रिक्वायरमेंट क्या है, 3 आपकी जनरल एंट्रीज बनेंगी इसकी, पास एडजस्टिंग एंट्रीज, ये जो आपकी 3 एंट्रीज होंगी, फिर प्रिपेयर एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस, इनका इफेक्ट आपने लेके जाना है एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस के अंदर। देन थर्ड प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, आपने इनकम स्टेटमेंट बनानी है और बैलेंस शीट बनानी है। ये बेसिक 2 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपकी बनेंगी जो आपने बनानी है। देन पास क्लोजिंग एंट्रीज, वी ऑलरेडी नो कि क्लोजिंग एंट्रीज आपके टेम्परेरी अकाउंट्स की होती हैं, और टेम्परेरी अकाउंट आपका जो है वो दैट इज क्लोज्ड इनटू योर इनकम समरी अकाउंट। इनकम समरी अकाउंट में वो क्लोज होता है, और फाइनली इनकम समरी अकाउंट आपका कहां पे क्लोज होता है, जाके कैपिटल अकाउंट। देन पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस, अब फिर एंड पे आपने जब टेम्परेरी अकाउंट्स को क्लोज कर दिया, आपके टेम्परेरी अकाउंट्स कौन से होते हैं, जो इनकम स्टेटमेंट से रिलेटेड होते हैं, वो सारे के सारे आपके टेम्परेरी अकाउंट्स होते हैं। वो जब क्लोज हो जाते हैं तो फाइनली आप जो है वो जो रिमेनिंग आइटम्स रह जाते हैं उनका आप बैलेंस करते हैं, तो दैट बिकम्स योर पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस। अब ये आपका एक नेक्स्ट क्वेश्चन था जिसको आपने दैट यू स्टार्टेड फ्रॉम अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस टू फाइनल रीच अप टू पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस। जब आप अकाउंटिंग साइकिल का क्वेश्चन नंबर 1 जो मैंने आपको बताया, और अब ये क्वेश्चन नंबर 2 ये सॉल्व कर लेंगे, तो फिर आई होप कि आपको जो 7 स्टेप्स हैं वो सारे के सारे कंप्लीट उनकी अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। उसके बाद फिर आपके लिए एक डिफिकल्टी लेवल आएगा जिसमें आपके पास अकाउंट्स भी बहुत ज़्यादा होंगे, ट्रांजैक्शंस भी बहुत ज़्यादा होंगी, बहुत ज़्यादा आपके लेजर्स बनेंगे, बहुत ज़्यादा लेजर्स के बाद आपने फिर एक बड़ी लंबी लिस्ट वाला ट्रायल बैलेंस बनाना होगा। उसी में से आपने फिर फाइंड आउट करना होगा कि कौन से अकाउंट्स हैं जिनकी एडजस्टिंग एंट्रीज होनी है। फिर आपने एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बनाना है, उसमें से आप देखेंगे कि कौन से इनकम स्टेटमेंट के आइटम्स हैं, कौन से बैलेंस शीट के आइटम्स हैं, और उसके बाद फाइनली आप क्लोजिंग एंट्रीज करके पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस बना देते हैं। ये 2 क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा जो नेक्स्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने के लिए, क्योंकि उसमें ट्रांजैक्शंस बहुत ज़्यादा है, लेकिन एहतियात बहुत ज़रूरी है क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए कि कहीं पे कोई फिगर्स कम या ज़्यादा ना लिखी जाए, कहीं कोई जनरल एंट्री ओमिट ना हो जाए, क्योंकि अगर कोई भी एंट्री गलत लिखी गई तो आपको एक गलत क्वेश्चन को ठीक करना ज़्यादा डिफिकल्ट है बनिस्बत इसके कि आप एक नए सिरे से क्वेश्चन को करें। तो आपने काम पहले ये करना है कि एक एक ट्रांजैक्शन को प्रॉपर चेक करना है, उसको टिक मार्क लगानी है कि ये पोस्ट हो गया है, उसके बाद नेक्स्ट फेज पर आपने जाना होगा। और आपको पता है, एक दफ़ा ओवरव्यू कर लें कि किसकी ट्रांजैक्शंस बहुत ज़्यादा है, तो उनके लिए लेजर्स बड़े बना लें। अब आपको पता है कि कैश की ट्रांजैक्शन बहुत ज़्यादा होती हैं, तो आपके बहुत बड़े वो बन जाएंगे
लेजर्स बनेंगे उनका साइज थोड़ा सा बड़ा बना लीजिएगा। बाकी जो रूटीन मैटर्स में होते हैं उनके लिए थोड़ा से छोटे लेजर्स बनाए जा सकते हैं। फिर आपने सब्सिडी लेजर्स बनाने होंगे। इसमें आपको पता है कि सब्सिडी लेजर्स कौन से होते हैं, आप वो बनाएंगे। उनका टोटल का डाटा फिर आप उनके कंट्रोल लेजर अकाउंट में लेके जाएंगे। अब आपको पता है कि कौन कौन से आपके मेन स्पेशल जर्नल्स थे और स्पेशल लेजर्स थे। आपको पता है यू हैव ऑलरेडी मेड द सेल्स जर्नल, परचेज जर्नल, कैश रिसीट जर्नल एंड कैश पेमेंट जर्नल। ये 4 स्पेशल जर्नल्स थे और फिर इनका डाटा आप उनके सब्सिडी लेजर्स में लेके जाते हैं, तो आपने वो भी उसको कंप्लीट करना होगा। उसके बाद फिर फाइनल आप नेक्स्ट फेज पे जाएंगे। सो लेट्स गो टू द अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव अकाउंटिंग साइकिल प्रॉब्लम। अब इसको आपने बड़ी गौर से पढ़ना है, बड़ी एहतियात से पढ़ना है, उसके बाद आपने इसको सॉल्व करना है। अब पहला आपके पास ये एक जो स्लाइड है उसमें बेसिक इंफॉर्मेशन दी गई है। नाउ आई जस्ट रीड दिस बेसिक इंफॉर्मेशन। नंबर 1, you have on September 1st, 2010, Naeem Ahmed organized a business with the name of Naeem's Rentals for the purpose of operating an equipment rental yard. एक उसने एक Naeem's Rental के नाम से एक बिजनेस स्टार्ट किया। अब नेक्स्ट में वो क्या कहता है, द न्यू बिजनेस वाज एबल टू बिगिन इट्स ऑपरेशन इमीडिएटली बाई परचेजिंग द एसेट्स एंड टेकिंग ओवर द लोकेशन फॉर द रेंट। उसने फौरन ही अपने एसेट्स परचेज किए और उसके बाद उसने वो लोकेशन है उसको ले लिया रेंट पर देने के लिए। अब नईम यूजेस द फॉलोइंग चार्ट ऑफ अकाउंट्स। वो कौन कौन से आपके चार्ट ऑफ अकाउंट्स हैं ये उसने डिटेल दे दी है। अब इससे हट के आपने कुछ नहीं बताना, ये आपके लिए एक सिंपल काम दे दिया गया इस क्वेश्चन में कि आपको उसने सारे के सारे अकाउंट्स बता दिए, उनकी डिटेल बता दी है कि कौन कौन से यूज होंगे अकाउंट्स आपके इसमें। फर्स्ट वन, यू हैव अ कैश, हर एक क्वेश्चन में यूज होता है। अकाउंट्स रिसीवेबल हर क्वेश्चन में यूज होता है। देन प्री पेड रेंट, इट इज नॉट नेसेसरी दैट दिस अकाउंट इज ऑलवेज यूज्ड। देन अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस, ये भी आपको बता दिया उसने, एडवांस में जो आप इंश्योरेंस पे करते हैं। ऑफिस सप्लाईज, ये भी आप दे रहे हैं। रेंटल इक्विपमेंट, आपके पास एक और अकाउंट मौजूद है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ रेंटल इक्विपमेंट। अब उसने काउंटर अकाउंट भी बता दिया उसकी डेप्रिसिएशन के, कोई कौन सा यूज करना आपने, उसका टाइटल क्या होगा। देन नोट्स पेएबल, अकाउंट्स पेएबल, इंटरेस्ट पेएबल, एक और नया अकाउंट आ गया आपके पास जो हमने पहले डिस्कस नहीं किया कि आपने इंटरेस्ट पे करना होगा जिससे आपने लोन लिया है। या तो आप कैश पे कर देते, कैश नहीं पे करते तो आपकी लाइबिलिटी बन जाती है। देन अनअर्न्ड रेंटल फीस, कि कोई आपने एडवांस में रेंटल फीस रिसीव कर ली थी, तो जब तक आप वो सर्विसेज परफॉर्म नहीं कर देते, टाइम नहीं गुजर जाता, तो दैट इज स्टिल योर लाइबिलिटी अनटिल अनलेस कि आप उसको बाद में अर्न ना कर लें। देन नईम्स कैपिटल, नईम्स ड्राइंग्स, इनकम समरी, ये आपका रिलेटेड है आपके जो सेकंड लास्ट फेज है कि जिसमें आप अपने अकाउंट्स को क्लोज कर रहे होते हैं। रेंटल फीस अर्नड, ये आपका रेवेन्यू का टाइटल होगा। सैलरीज एक्सपेंस, मेंटेनेंस एक्सपेंस, यूटिलिटीज एक्सपेंस, ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस एंड देन इंटरेस्ट एक्सपेंस। ये बेसिकली आपका चार्ट ऑफ अकाउंट है कि जो मैक्सिमम यूज होंगे आपके इस बिजनेस के अंदर। वो कहते हैं देन कंपनी क्लोजेज इट्स अकाउंट्स एंड प्रिपेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एट द एंड ऑफ ईच मंथ। अब यहाँ पे साल का नहीं जिक्र हो रहा, यहाँ पे मंथ का जिक्र हो रहा है कि स्टार्ट सितंबर 1 से हुआ और क्लोज कब होगा, जब सितंबर आपका मंथ क्लोज हो होगा। देन ड्यूरिंग सितंबर द कंपनी एंटर्ड इनटू द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस। वो कौन कौन सी ट्रांजैक्शंस हैं कि कंपनी आपकी फौरन ही इन ट्रांजैक्शंस में इन्वॉल्व होगी। नंबर 1, यू हैव September 1st, Naeem deposited rupees 1 lakh cash in the bank account in the name of a business as a Naeem's Rental। ये ट्रांजैक्शन हम कई दफ़ा कर चुके हैं, इसकी डिटेल आपके पास ऑलरेडी मौजूद है, इसको आपने कई दफ़ा सॉल्व किया है, इसलिए इसकी मैं डिटेल में नहीं जा रहा। September 1st, again paid rupees 9,000 to Shapiro
रियलिटी एज 3 months एडवांस रेंट ऑन द रेंटल यार्ड। आपने जो जगह ली थी रेंट के लिए, आपने उसका एडवांस रेंट पे किया। तो अब यहाँ पे इसको याद रखिएगा कि जो एडवांस में पेमेंट कर रहे हैं दैट इज़ योर प्रीपेड एक्सपेंस एंड प्रीपेड इज़ अ पार्ट ऑफ योर एसेट्स। जब महीना गुजरेगा तो फिर आपका ये एक्सपेंस होगा, इसकी एडजस्टिंग एंट्री भी होनी है। Then September 1st purchased for rupees 1,80,000 all the equipment formerly owned by the rented, paid rupees 70,000 cash and issued a 1-year note payable for rupees 1,10,000 plus interest at annual rate of 9%। अब यहाँ पे जो आपको शुरू में बताया था ना इंटरेस्ट पेबल, वो भी आएगा यहाँ पे। फिर आपका नोट्स पेबल ये भी बन गया ऑलरेडी। कैश आपने एडवांस में पे की। परचेज इक्विपमेंट आपने परचेज किया था। अब आपके पास इक्विपमेंट है, कैश का ट्रांजैक्शन हुई है, नोट्स पेबल की ट्रांजैक्शन हुई है और इंटरेस्ट की ट्रांजैक्शन होगी। अब आप देख सकते हैं इसमें आपकी एडजस्टिंग एंट्री भी होनी है। देन September 4th को आपने क्या किया? परचेज ऑफिस सप्लाईज ऑन अकाउंट फ्रॉम मॉडर्न ऑफिस कंपनी रुपीज 1,630, पेमेंट ड्यू इन 30 days। These supplies are expected to last for several months. Debit the office equipment supplies। ये आपको एक क्लू दे दिया गया है इस क्वेश्चन में, ये आप खुद सॉल्व करेंगे कैसे करना है। ऑन अकाउंट परचेज की गई सप्लाईज, इस ट्रांजैक्शन को हम कई दफ़ा कर चुके हैं। Then September 8 received rupees 10,000 cash from Macrine Construction Company as advance payment on rental equipment। आपने जो इक्विपमेंट देना है लोगों को रेंट पे, तो वो अब आपको एडवांस में मैकब्राइन कंस्ट्रक्शन कंपनी ने आपको एडवांस में पेमेंट कर दी 10,000 की। तो आपके लिए अनअर्न्ड रेवेन्यू है, कैश तो रिसीव होगी लेकिन दूसरी साइड पे आपकी लाइबिलिटी बन रही है। September 12 पेड सैलरीज फॉर द फर्स्ट 2 weeks इन द September रुपीज 3,600। अब आपके पास जो सैलरीज हैं आपने पे की हैं, ये हम अपने उसमें ऑलरेडी कर चुके हैं लेक्चर में कि सैलरीज एक्सपेंस डेबिट होगा और कैश पे करें तो कैश क्रेडिट हो जाएगी आपकी। September 15 excluding the McBride advance equipment rental fees earned during the first 15 days of September amounted to rupees 6,100, of which 5,300 was received in cash। अब आपने मैकब्राइन कंपनी से हट के आपने कुछ और भी अर्न किया है 15 डेज का, वो है 6,100 का, जिसमें से आपको 5,300 की कैश रिसीव हुई है, बाकी आपका रिसीवेबल बन गया हुआ है। देन 17 सितंबर को परचेज्ड ऑन अकाउंट फ्रॉम अर्थ मूवर्स इनकॉर्पोरेशन रुपीज 340 इन पार्ट्स नीडेड टू रिपेयर अ रेंटल ट्रैक्टर, पेमेंट इज ड्यू इन 10 days। आपने परचेज किया है एक जो पार्ट्स परचेज किए हैं ट्रैक्टर के लिए 340 के, और पेमेंट आपने करनी है तो आपके लिए अकाउंट्स पेबल बनेगा। देन September 23 कलेक्टेड रुपीज 210 ऑफ द अकाउंट रिसीवेबल रिकॉर्डेड ऑन September 15। आपको 210 रुपीज अब कैश रिसीव हो गई है, रिसीवेबल आपका खत्म हो गया। September 25 rented a backhoe to Mission Landscaping at a price of rupees 100 per day to be paid when the backhoe is returned। Mission Landscaping expects to keep the backhoe for about 2 or 3 weeks। अब देखें, again I repeat this transaction कि rented a backhoe to Mission Landscaping at a price of, ये आपका एक इक्विपमेंट है जो आपने रेंट पे दिया है 100 रुपीज़ पर डे के हिसाब से। टू बी पेड व्हेन द बैकहो इज रिटर्न, और ये उस वक्त होगा जब जब आप उसको रिटर्न कर लेंगे, जब आपके पास वो वापस आ जाएगा तब वो आपको पेमेंट करेगा उसकी। मिशन लैंडस्केपिंग एक्सपेक्ट टू कीप द बैकहो फॉर अबाउट 2 or 3 weeks। लेकिन आप एक चीज़ और भी देखें कि इसमें एक एक्सपेक्टेड अमाउंट लिखी गई है, एक्सपेक्टेड डेज लिखे गए हैं, 2 हफ्ते या 3 हफ्ते। सो जस्ट स्टॉप दिस ट्रांजैक्शन, आप इसकी जनरल एंट्री ना करें अनटिल अनलेस कि आपको इसकी डिटेल ना मिल जाए। जब आपकी डिटेल मिल जाएगी तो फिर आप उसके मुताबिक उसकी ट्रांजैक्शन कीजिएगा। देन September 26 पेड
बाई वीकली सैलरीज ₹3,600, 2 वीक्स की आपने सैलरी पे की है। देन September 27 पेड द अकाउंट पेबल टू अर्थ मूवर्स इन कॉर्पोरेशन ₹340। अब आपने अकाउंट्स पेबल अर्थ मूवर्स को जिनसे आपने परचेजेस की थी, अब आपने उसको 340 पे भी कर दिया हुआ है, कैश पेमेंट हुई है आपकी। नाउ September 28 नईम अहमद विड्रू ₹2,000 कैश फ्रॉम द बिजनेस टू पे द रेंट ऑन हिज पर्सनल रेजिडेंस। ये जनरल एंट्री आप ऑलरेडी कई दफ़ा कर चुके हैं, ये आपकी ड्राइंग्स हैं। देन मोस्ट इंपॉर्टेंट September 29 I just read this complete paragraph and then I will tell you what this question says about it. Naeem's rental Naeem Ahmed was named along with the Mission Landscaping and Collier Construction as a co-defendant in a ₹25,000 lawsuit filed on behalf of Kevin Davenport. अब क्योंकि ये इंग्लिश बुक से लिए गए हैं ये वाली, तो इसलिए यहाँ पे यूज़ भी वो इंग्लिश जो कंस्ट्रक्शन कंपनीज हैं उनके नाम है, यूएस बेस्ड है, तो इसलिए यहाँ पे इनके नाम यूज़ किए गए हैं। अब आपकी जो कंपनी है नईम्स रेंटल, उसके ऊपर 25,000 रुपये का एक केस लगा दिया गया है। आप उसको डिफेंड कर रहे हैं क्योंकि मिशन लैंडस्केपिंग प्लस कोलियर कंस्ट्रक्शन कंपनी के साथ मिलकर आपके ऊपर भी एक केस आया है 25,000 रुपये का, जो आपने फाइल किया है किसने, ऑन बिहाफ ऑफ केविन डेवनपोर्ट ने। मिशन लैंडस्केपिंग हैड लेफ्ट द रेंटेड बैक हो इन अ फेंस्ड कंस्ट्रक्शन साइट डाउन बाय द कोलियर कंस्ट्रक्शन, कि वो वहाँ पर जो आपने उसको दिया था ना बैक हो, वो वहीं पर रह गया हुआ था, तो उसकी बेस पर उन्होंने किया है। आफ्टर वर्किंग आवर्स ऑन द September 26 Davenport had climbed the fence to play on parked construction equipment. While playing on backhoe, he fell and broken his arm. अब ये क्योंकि ज़ाहिर है अंग्रेज़ हैं तो गोरों के अपने फिर मसाइल भी होते हैं। आपने कोई चीज़ वहाँ पे छोड़ दी थी तो उसके साथ वो खेल रहे थे, जो बैकहो था आपका जो इक्विपमेंट था उसके साथ वो गेम कर रहे थे, जिसकी वजह से वो उनका जो बंदा था वहाँ पे गिर गया है और उसकी जो है वो बाजू टूट गई थी, जिस वजह से आपके ऊपर 25,000 रुपये का केस कर दिया गया है। द एक्सटेंट ऑफ द लीगल एंड फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर दिस एक्सीडेंट इफ एनी कैन नॉट बी डिटर्मिन्ड एट दिस टाइम। आपके ऊपर कितनी अमाउंट अब एप्लीकेबल होगी कि आपने उनको उसका क्लेम पे करना है, दैट इज़ नॉट येट डिटर्मिन्ड। अभी तक उसकी डिटर्मिनेशन नहीं है कि कितनी 25,000 में से आपको पे करना पड़ेगा जो आपके ऊपर केस हुआ है। नोट दिस इवन डज नॉट रिक्वायर अ जर्नल एंट्री। अब यहाँ पे सिंपल आपको एक क्लू भी दे दिया गया है, जर्नल एंट्री एट दिस टाइम बट मे रिक्वायर डिस्क्लोजर इन द नोट्स अकम्पनाइंग द स्टेटमेंट्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब आपको एग्जैक्टली एक छोटी सी बात के लिए इस ट्रांजैक्शन को लिखा गया, अदरवाइज इसको एक्सक्लूड भी किया जा सकता था कि जब तक आप एग्जैक्ट अमाउंट डिटरमिन नहीं कर लेते उस वक्त तक आपकी किसी चीज़ की भी जर्नल एंट्री नहीं होती। आपको एग्जैक्ट अमाउंट एसेट की वैल्यू की नहीं पता, आप नहीं लिखेंगे। लाइबिलिटीज़ की नहीं पता, नहीं लिखेंगे। ऑनर्स इक्विटी की नहीं पता, नहीं लिखेंगे। आपको जब तक एग्जैक्ट अमाउंट नहीं पता होती, अभी मे बी और मे नॉट बी का वर्ड आया हुआ होता है, तो उस वक्त तक आप उसकी कोई जर्नल एंट्री नहीं करते, उसको आप अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में नहीं लेके जाते। अब यहाँ पे वो कह रहे हैं सिंपली डिस्क्लोजर। डिस्क्लोजर मीन्स कि आपने बताना ज़रूर है जब आप अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स शो कर रहे होते हैं। तो आप जब सिंपल काम करें तो आपको ये जर्नल एंट्री की ज़रूरत ही नहीं है। देन अगेन कमिंग ऑन September 29 purchased a 12 months public liability insurance policy for ₹2,700. This policy protects the company against liability for injuries and property damage caused by its equipment. However, the policy goes into effect on October 1st and the affords no coverage for injuries sustained by Kevin Davenport on September 26. अब आपने एडवांस में इंश्योरेंस पे कर दिया तो आपके लिए यूज़ किया गया है चार्ट ऑफ अकाउंट में अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस का वर्ड यूज़ किया गया है, तो आपके लिए अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस होगी ये, और विद इफेक्ट फ्रॉम कब तक होगी, September 1 से। तो इसलिए आप जब
30 सितंबर को अपने अकाउंट्स क्लोज कर रहे होंगे तो यहाँ पर इसकी एडजस्टिंग एंट्री भी नहीं होगी, क्योंकि इसकी एप्लीकेशन कब से है, 1 अक्टूबर से। तो जब आप 31 अक्टूबर पे पहुंचेंगे तो उस वक्त आपकी 30 या 31 जो भी 31 अक्टूबर पे आएंगे तो तब आप इसकी जो है वो एडजस्टिंग एंट्री करेंगे, क्योंकि आपका स्टार्ट ही ये 1 अक्टूबर से इसका इफेक्ट होगा। देन September 30th received a bill from Universal Utilities for the month of September ₹270, payment is due in 30 days। ये आपके लिए एक लाइबिलिटी अकाउंट्स पेबल बन गया यूटिलिटीज एक्सपेंस का। देन 30 सितंबर को इक्विपमेंट रेंटल फीस अर्न ड्यूरिंग द सेकेंड हाफ ऑफ सितंबर एंड रिसीव्ड इन कैश अमाउंटिंग टू ₹8,450। ये वो अमाउंट है जो ऑलरेडी आप कर चुके हैं, आपको रिसीव हो गई है, अर्न हो चुकी है आपकी, ठीक है, और आपको बता दिया गया कि कैश के अगेंस्ट भी मिली है। सो दीज आर ऑल द बेसिक ट्रांजैक्शंस जो आपने इनकी जर्नल एंट्रीज करनी है, इनसे आपने लेजर्स बनाने हैं, लेजर्स से आपके फिर ट्रायल बैलेंस बनेंगे। अब ये तो वो जर्नल एंट्रीज हैं कि जो आपने की है, उनके फिर लेजर्स बनाए हैं, लेजर्स के बाद आपने ट्रायल बैलेंस बनाए। लेकिन डाटा फॉर एडजस्टिंग एंट्रीज क्या कह रहा है, आपको ये कुछ इन्फॉर्मेशन भी ऑलरेडी बताई गई होगी कि इनका जो इंस्ट्रक्शंस हैं उसमें भी जाके पढ़ें कि क्या आपकी इंस्ट्रक्शंस हैं और क्या उसमें जर्नल एंट्रीज के बारे में जिक्र होगा। द एडवांस पेमेंट ऑफ रेंट ऑन September 1st कवर्ड अ पीरियड ऑफ 3 months। ये भी आपको ऑलरेडी पता है, एडवांस पेमेंट आपने की थी तो मैंने आपको शुरू में भी बता दिया था कि इसकी जर्नल एंट्री होगी। देन इंटरेस्ट एक्रूड ऑन नोट पेबल टू रेंट इट अमाउंटेड टू ₹825 एट September 30th। अब आपका ये जो इंटरेस्ट है एक महीना का 825 ये भी पेबल है, यानी इंटरेस्ट पेबल जिसके हमने चार्ट ऑफ अकाउंट्स में देखा था। थर्ड में कहता है सी में द रेंटल इक्विपमेंट इज बीइंग डेप्रिसिएटेड बाय स्ट्रेट लाइन मेथड ओवर अ पीरियड ऑफ 10 years। अब यहाँ पे आपने खुद कैलकुलेट करना है उसको, 10 years का लाइफ टाइम है और स्ट्रेट लाइन है, जो उसकी टोटल अमाउंट है डिवाइड बाय 10 years कर देंगे, और वो कहता है कि आपने मंथली बेसिस बनाना है तो डिवाइड बाय 12 कर देंगे उसको बाद में। ऑफिस सप्लाईज ऑन हैंड एट September 30th आर एस्टिमेटेड एट ₹1100। बाकी आपका एक्सपेंस हो गया होगा, इसकी भी एडजस्टिंग एंट्री होगी। देन ड्यूरिंग September द कंपनी अर्नड ₹4,840 ऑफ द रेंट फीस पेड इन एडवांस बाय मैकब्राइन कंस्ट्रक्शन कंपनी ऑन September 8। अब आपने जो मैकब्राइन कंपनी ने आपको एडवांस में जो पेमेंट की थी उसमें से 4,840 तक का काम हो चुका है, तो ये आपके लिए इनकम होगी, बाकी आपकी स्टिल अनअर्न्ड रेवेन्यू बन जाएगा। देन एफ में एज ऑफ September 30th नईम रेंटल हैज अर्नड 5 days रेंट ऑन अ बैकहो रेंटेड टू मिशन लैंडस्केपिंग ऑन September 25। अब वो कहता है कि 5 days की आपकी अर्निंग है और पर डे आपको पता है 100 था, तो आपने इनसे अर्न कितना किया, आपने 500 अर्न किया इनसे। देन सैलरीज अर्नड बाय एम्प्लॉइज सिंस द लास्ट पेरोल डेट September 26 अमाउंटिंग टू ₹900 एट मंथ एंड। अब सैलरीज जो है वो भी अब आपकी पेएबल होगी, आपके एम्प्लॉइज ने अर्न कर ली है तो सैलरीज एक्सपेंस बन गया, उधर से आपकी लाइबिलिटी बन गई है सैलरीज पेएबल। आपको पता भी है कि वो हमारा चार्ट ऑफ अकाउंट में मौजूद था। सो दीज आर द बेसिक ट्रांजैक्शंस दैट यू हैव टू से इन योर एडजस्टिंग एंट्रीज। इससे पहले आपने अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बनाया है, अब फिर आपने एडजस्टिंग एंट्रीज की, एडजस्टिंग एंट्रीज के बाद फिर आप एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बना रहे हैं। अब आपको इंस्ट्रक्शंस क्या दी गई हैं, आपने क्या प्रिपेयर करना है। जनरलाइज द अबव ट्रांजैक्शंस, पोस्ट टू लेजर अकाउंट्स, then prepare ledger accounts for the month ended September 30th, prepare an income statement and a statement of owner's equity for the month of September and a balance sheet in report form as of September 30th। report form में बना लें या account form में बना लें, this is up to you, I'm giving you a choice। then prepare adjusting and closing entries and post to the ledger account। यही आपकी जो second last है। then prepare and after closing trial balance as of September 31st। ये तो वो है। then I am giving you another requirement, that is prepare वर्कशीट। अब आप अगर ये काम भी कर लेते हैं तो समझे आपको पूरे का पूरा अकाउंटिंग साइकिल कंप्लीट आ गया।
that you started from unadjusted trial balance, adjusting entries, adjusted trial balance, income statement, balance sheet and finally after closing trial balance. ये सारा काम आप कंप्लीट कर लेंगे. Now coming to the inventories. इन्वेंट्रीज का हमने चैप्टर पढ़ा, उसमें आपके पास सबसे पहले मर्चेंडाइजिंग बिजनेस था. मर्चेंडाइजिंग बिजनेस को आपको पता है कि आप परचेज करते हैं और उसको सेल कर देते हैं विदाउट एनी मॉडिफिकेशन. तो फिर आपने जब उनकी इनकम स्टेटमेंट बनानी होगी, प्रिपेयर इनकम स्टेटमेंट में आपके पास सेल्स, सेल्स रिटर्न, सेल्स डिस्काउंट, फिर आपने नेट सेल्स निकालना होगा. नेट सेल्स में से आपने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करेंगे, आपके पास ऑपरेटिंग इनकम आ जाएगी, उसमें से आपने सेलिंग और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस माइनस करने हैं. जो आपके पास इनकम बिफोर टैक्स आ जाएगा, उसके ऊपर आपने 20% का टैक्स लेकर नेट इनकम कैलकुलेट कर लेनी है. तो ये आपका मर्चेंडाइजिंग बिजनेस था. इन्वेंट्रीज फॉर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस क्या होगा? आपने ये क्वेश्चन भी ऑलरेडी किया हुआ है लेकिन इसमें डाटा डिफरेंट है. आपके पास सेल्स रेवेन्यू, क्योंकि आपको पता है फ्लो क्या था उसका, आपके जो भी बिजनेस होता है उसमें मटेरियल, लेबर, एफएच वो सारे का सारा आपका जाता है वर्क इन प्रोसेस में. वर्क इन प्रोसेस में काम होने के बाद वो चीज़ें बन जाती हैं, तो दैट गोज इनटू द फिनिश गुड्स, और उन फिनिश गुड्स में से आप चीज़ें सेल कर रहे होते हैं. तो आपने ये भी बनाना है. इसमें सेल्स हैं, वर्क इन प्रोसेस, ओपनिंग और एंडिंग आपको दी गई है. सेलिंग एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस आपके पार्ट किसका है? ये आपकी इनकम स्टेटमेंट का पार्ट है. इनकम स्टेटमेंट का पार्ट आपका सेल्स इनकम स्टेटमेंट का पार्ट है, लेकिन ये आपकी सीजीएस वर्क इन प्रोसेस है. देन इनकम टैक्स 20%, ये आपका इनकम स्टेटमेंट का पार्ट है. परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट का पार्ट है. अगेन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट रॉ मटेरियल है. डायरेक्ट लेबर भी आपकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, डिटो एज इट इज लिख रहा हूं मैं. यूटिलिटीज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, डेप्रिसिएशन प्लांट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, फिनिश गुड्स कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ओपनिंग एंड एंडिंग फिनिश गुड्स कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर एंड देन अदर मैन्युफैक्चरिंग. ये सारे के सारे आपकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का पार्ट है. और सिर्फ आपके पास सेल्स, देन सेलिंग एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस जो आपने पीछे क्वेश्चन देखा है वो, इनकम टैक्स, ये सारी की सारी आपकी इनकम स्टेटमेंट का पार्ट है. लेकिन पहले आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट बनानी पड़ेगी, उसके बाद फिर आप इनकम स्टेटमेंट बना सकेंगे. सो दैट क्वेश्चन इज रिलेटेड विद योर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस. Now requirements could be your prepare cost of goods sold statement, prepare income statement, prepare journal entries and prepare closing entries. ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं इसको, तो इसकी भी आपने प्रैक्टिस करनी है. इस क्वेश्चन की कर लेंगे तो आई थिंक इट वुड बी वेरी इजी फॉर यू टू सॉल्व द अदर क्वेश्चंस, कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस. देन इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम्स. आपने इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम देखा था कि आपके पास परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम है और पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम है. अब परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम में आपके पास फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट, एवरेज, हमने हर एक को सेपरेट लेक्चर में देखा था उसकी डिटेल की क्या है. पीरियोडिक में भी यही तीन आपके सिस्टम आते हैं. आपके पास फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है, लास्ट इन फर्स्ट आउट है और एवरेज है. जब इनका आपको कॉन्सेप्ट पता होगा तो आई थिंक इट वुड बी वेरी इजी फॉर यू टू सॉल्व दिस क्वेश्चन वेदर इट इज योर परपेचुअल या पीरियोडिक, क्योंकि हर एक में तरतीब सेम होगी. और इसके बारे में बेसिक हमें ये पता है कि जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट जो शुरू में आते हैं आप उसको शुरू में सेल करते हैं. लास्ट इन फर्स्ट आउट में जो आपने रिसेंट परचेज किए होते हैं पहले उनको सेल करते हैं. और एवरेज में आप सब का एवरेज निकाल के फिर आप उसको सेल कर रहे होते हैं जो आप परचेज कर रहे होते हैं. बेसिक डिफरेंस परपेचुअल और पीरियोडिक हम क्यों यूज़ करते हैं कि आपके पास परपेचुअल में एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स होती हैं, लेकिन पीरियोडिक में आपके पास ज़्यादा एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स नहीं होते, उनकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है. लेकिन परपेचुअल में आपके पास एक्सपेंसिव होने की वजह से प्रोडक्ट कॉस्टली होने की वजह से आपके पास वो आइटम कम होते हैं. सो आई एम गिविंग यू दीज क्वेश्चंस
ये क्वेश्चंस आपके पास जनरल एंट्री, आपके पास एंट्रीज भी ज़्यादा हैं। जनवरी में इन्वेंट्री आपका बैलेंस था, 4th को आपने सेल्स की, 8th को आपने परचेजेस की, 10th को आपने परचेजेस की, 22 को आपने सेल किया, 28 को भी आप सेल कर रहे हैं, 30th को आप सेल कर रहे हैं, परचेजेस कर रहे हैं, और फाइनली 31st को आप सेल्स कर रहे हैं। जो बाकी बैलेंस होगा वो नेक्स्ट के लिए आपकी ओपनिंग इन्वेंट्री बन जाएगी। सो आपने इसको फाइफो, लाइफो और एवरेज के थ्रू परपेचुअल इन्वेंट्री के सिस्टम आपने इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। देन पीरियोडिक में क्या करेंगे आप, यही इसकी रिक्वायरमेंट है, सॉल्व द क्वेश्चन बाय यूजिंग फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट एंड एवरेज मेथड, इसके थ्रू आपने करना है। देन पीरियोडिक में क्या करना होगा, डाटा डिफरेंट है लेकिन मेथोडोलॉजी सेम है। आपके पास 300 यूनिट्स हैं आपकी बिगिनिंग इन्वेंट्री, और उसमें पर यूनिट कॉस्ट थी 11। अब 400 यूनिट्स हैं आपके और उसका रेट था 13। 200 यूनिट्स आपके पास परचेज किए हैं सितंबर 21 को और उसका रेट है 14। एंड फाइनली आपने 100 यूनिट्स परचेज किए हैं, उनका रेट है 10। आपके पास ये इन्वेंट्रीज मौजूद हैं, इनकी टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करें, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड, लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड और एवरेज बैलेंस मेथड। ये हम देख चुके हैं अपने पिछले लेक्चर्स में, उसके मुताबिक आप लोगों ने इसको सॉल्व करना है। सो दैट वाज रिलेटेड विद योर इन्वेंट्रीज। नाउ वी डिस्कस्ड अबाउट कैश ट्रांजैक्शंस, कि कैश आपकी कैश कंट्रोल के बारे में हमने पढ़ा था, इंटरनल कंट्रोल ओवर कैश क्या होता है, उसकी इंपॉर्टेंस भी देखी थी हमने। फिर एंड पे हमने देखा था बैंक रिकॉन्सिलिएशन के बारे में, कि व्हाई योर ओन अकाउंट इज डिफरेंट फ्रॉम द अमाउंट दैट यू हैव इन योर बैलेंस इन द बैंक स्टेटमेंट। जो बैंक स्टेटमेंट आपको मिल रही है उसमें बैलेंस कुछ और है और जो अभी आपके पास बैलेंस है वो कुछ और है। तो उसकी क्या रीजंस हो सकती हैं जिनकी वजह से डिफरेंस इस पे आ रहा है। आपके फर्स्ट स्लाइड पे बैंक स्टेटमेंट में आपको अमाउंट ये शो की गई है। फिर आपने देखा है 31 अगस्त को बैंक स्टेटमेंट शोज चार्जेस आपके ये हैं जिसकी वजह से डिफरेंस आ सकता है। देन अगस्त 28 को बैंक स्टेटमेंट शोज अ रिटर्न ऑफ 100 प्लस रिलेटेड बैंक फीस ऑफ 10 टोटल, यानी 110 का आपका डिफरेंस आ रहा है कि वो एक रिटर्न हुआ था आइटम जिसकी वजह से मेजर डिफरेंस आया है। देन फोर्थ आइटम में आपके चार्जेस थे, जो आपकी चेक बुक मिलती है उसके चार्जेस आपके। फिफ्थ आइटम में आपके पास 8 रुपीज़ थे दैट वाज एडेड टू चेकिंग अकाउंट ऑन अगस्त 31 फॉर इंटरेस्ट अर्नड बाय द कंपनी ड्यूरिंग द मंथ। 8 रुपीज़ इंटरेस्ट लगा था तो वो ऐड नहीं किया गया। देन आइटम 6, बैंक स्टेटमेंट शोज दैट अ नोट रिसीवेबल ऑफ ₹1000 was collected by the bank on August 29 and was deposited into the company's account. On the same day, the bank withdrew 40 from the company's account as a fee for collecting the note receivable. बैंक ने खुद ही सर्विस चार्जेस काट लिए जो नोट कलेक्शन के थे, आपको नहीं पता था उसके बारे में। देन आपकी 8th ट्रांजैक्शन थी कंपनीज कैश अकाउंट एट द एंड ऑफ अगस्त शोज अ बैलेंस ऑफ ₹967। बैंक के पास शो हो रहा था बैलेंस 3490 का। आपके पास आपके अकाउंट में होने चाहिए पैसे 967। वो क्या रीजंस थी, नीचे आपको 3 आइटम्स बताए उन्होंने। ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अगस्त कंपनी रोड चेक्स टोटलिंग मोर देन ₹50,000। एज ऑफ अगस्त 30, 3,021 of the check written in August had not yet cleared the bank and 200 of check written in June had not yet cleared the bank। अब ये 2 आइटम्स ऐसे थे कि जो बैंक ने क्लियर नहीं किया। आपने अपनी तरफ से तो क्लियर कर लिया लेकिन बैंक ने उनको क्लियर नहीं था किया। देन 9th में आपने ₹1,450 of cash received by the company on August 31st was recorded in the company's book as of August 31st. However, this amount of cash receipt was deposited at the bank on the morning of September। तो जाहिर है वो अगस्त के उसमें बैलेंस में तो नहीं शो होगा क्योंकि जमा ही आप उसको सितंबर में करवा रहे हैं। और आइटम नंबर 10, on August 29 the company's cash account shows cash sales of ₹145। the bank statement shows the amount deposited was actually 154। अब यहाँ पर फ़र्क आ रहा है अमाउंट का, 9 रुपीज़ का फ़र्क आ रहा है।
तो आपने इस 9 रुपीज़ को भी एडजस्ट करना है. सो दीज आर द बेसिक 10 आइटम्स दैट कुड क्रिएट अ डिफरेंस बिटवीन योर बैंक स्टेटमेंट एंड योर कैश स्टेटमेंट. तो आपने इनको एडजस्ट करना है. हमने लास्ट अपने लेक्चर में देखा था इसको कि कैसे सॉल्व करना है आप लोगों ने, उसके मुताबिक आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करें. सो आई होप दैट आफ्टर डूइंग दिस क्वेश्चन यू वुड बी इन ए पोजीशन टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज अ बैंक रिकॉन्सिलिएशन, कि आप बैंक से रिकॉन्साइल कर रहे हैं, उसको चेक कर रहे हैं. So this is all about our lecture number 31. I have given you these questions. You should try to solve these questions. जब आप इन questions को solve कर लेंगे तो I think आप बड़े अच्छे तरीके से जो है वो बाकी जितने भी हमारे लेक्चर्स थे उनके मुताबिक आप अपना एग्ज़ाम भी अच्छा अटैम्प्ट कर सकते हैं, आप अपने क्विज़ेज़ और असाइनमेंट्स भी बड़े अच्छे तरीके से सबमिट कर सकते हैं. सो आई होप कि दिस लेक्चर वाज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इफ़ यू विल सॉल्व these questions, आप 1 दिन में करें, 2 दिन में करें, 3 दिन में करें, दिस इज़ अप टू यू, कि आप इन क्वेश्चंस को जब सॉल्व कर लेंगे तो आप अपना जो टर्मिनल एग्ज़ाम है उसको बड़े अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं. एंड this is end of lecture number 31. Inshallah we will meet on our last lecture. I will give you an overview of our previous 31 lectures, that what we have discussed, and this would be a complete understanding. I hope, मैं आपसे एक्सपेक्ट ये करता हूँ कि आपको कंप्लीट एक अंडरस्टैंडिंग हुई होगी कि अकाउंटिंग क्या है, क्या इसमें टॉपिक्स होते हैं, कैसे इनके फेजेस स्टार्ट होते हैं, कि कैसे ट्रांजैक्शन से आप अल्टीमेटली डिफरेंट आइटम्स की तरफ जा रहे होते हैं. थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़.